Oh, Rukhsar. Rukhsar has had a baby. Very good. He has shared the photos as well. Very like her. No, exactly like Rukhsar. So cute. Good evening, sir. Good evening. Oh, oh. So today you wear a coat. I think you are feeling cold today. No, actually, I'm not wearing a sweater or anything. You know, Mm. such big eyes. Look at her eyes. Such big eyes. He is so cute, sir. Very beautiful. Exactly like Rukhsar. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Let me sharp. Good evening. Let's begin where we left yesterday. My favorite film. Some people have written the audio script as well for them. That's nice. Seven, exercise 7, parts 1 and 2. 1. Derek. My favourite film is Jaws. Repeat the line a little bit. My favorite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I saw it years ago. I was so frightened I couldn't watch. You're not repeating, you're reading. That's the difference. You're reading. Okay. I want you guys to repeat if you can. Okay? कोशिश करके repeat. I closed my eyes. I closed my eyes. I liked it because I like sharks. I I liked it because I like sharks. really do. Really? I do. And I enjoy frightening films. Enjoyed fighting films. Fighting films. I enjoy. I enjoy. Fighting films. Frightened films. Fighting films. Boring films or bored films? Sangeeta ma'am? Oh, boring films. Now, today, frightened films. Frightened. No, you're not getting it. You're still not getting it. Frightened films. I enjoyed frightened films. छोटा भीम चीरती मैं छोटा भीम चीरती है Good evening, sir. Hello, Sana. Good evening, sir. संगीता मैम, ऐसे नहीं चलेगा। आप रिलैक्स हो जाती हैं, नहीं चलेगा ऐसे। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ये ये क्या बोलते हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, मुझे बताएं, आई बोरिंग एंजॉयड फ्राइटिंग फिल्म्स होगा। क्यों? एंजॉय के बाद आपने बोला था या लाइक के बाद बोला था आईएनजी लगेगा। बात का इससे नहीं कोई सर, कनेक्शन नहीं है, उस बात का इससे कोई कनेक्शन नहीं। मैं बताता हूँ, सुनिए। इंजॉय के बाद आपने बोला था कि कुछ अपने बारे में या किसी के बारे में, जब तक इंजॉय जैसे मैं बोल देती थी ना हमेशा, आई इंजॉयड अ लॉट, तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। इंजॉय आप माई सेल्फ।
इसका क्या बात, इस बात का क्या लेना देना है कि फ्राइटनिंग फिल्म बोलना है कि फ्राइटेड फिल्म बोलना है, इसका इस बात से क्या लेना देना पूर्वा? Film नो is सर, मैं because उसके I'm बाद एक्सप्लेन नहीं किया। film is boring. उसके बाद मैंने बोला मैं सर, फिर I'm not talking about frightened films, sir. I only say about after enjoy we use something like Good evening, sir. hello Ravi. So please understand the context, what we are discussing, and then yes, yes. make a comment about the same. The question, Yes, Sayogita ma'am, is whether we should use frightening films or frightened films. And I think that everybody in the class should know which makes sense. हिंदी में क्या बोलना है? हिंदी में क्या बोलना है? मैं डरावने फिल्म को एंजॉय करता था। डरावनी फिल्म है। अब डरावनी फिल्म इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? फ्राइटेंड। कैसे डिसाइड होगा? कौन सा लेसन पढ़ा है मैंने? रेनू, निशात, सब लोग सना बताओ, डरावनी फिल्में कैसे बोलना है? फ्राइटनिंग फिल्म्स के फ्राइटन फिल्म्स? Frightened movie. Frightening. Frightened movie. पूर्वा, frightened movie. Frightening film, sir. Sorry. Yeah. Frightening movie. is frightened. Frightening. सर अगर हम अभी किसी को बता रहे हैं कि मुझे डरावनी फिल्म पसंद है तो हम बोलेंगे आई लाइक फ्राइटनिंग फिल्म। Frightening movie. Yes, sir. Frightening. और अगर सर पांच बताए हैं मुझे पसंद थी तो सर। I enjoy frightening films, sir. रवि, अगर पास्ट के बारे में बता रहे हो तो नीचे रवि बोलो, बोल के चुप हो गया बीच में। पास्ट के बारे में बताना है, मुझे डरावनी फिल्म अच्छी लगती थी तो आई लाइक फ्राइटनिंग फिल्म। No, sir. तभी I liked frightening movie ही बोलेंगे ना। Before we use frightening, after like. मेरे मेरे सनम शुक्रिया है पानी गरम, कब मैंने ये सोचा था, जब मैंने ये जाना था। No, sir. I like frightening movie. Frightened movie. यार रवि, क्या करते हो यार? कोई बात का मतलब भी तो हो, कोई तो लॉजिक, कोई तो सॉलिड ग्राउंड हो। डरावनी फिल्में पास्ट में अलग इंग्लिश और प्रेजेंट में अलग इंग्लिश डरावनी फिल्मों की। तो और एंजॉयड fright- यहाँ लग गया ना, तो फ्राइटिंग होगा। अब सब लोग चुप हो जाए, अब सब लोग चुप हो जाए और बात खाली सुनते रहे ध्यान से। कि चला जाए तो अच्छी बात है। डरावनी फिल्में नाउन है और डरावनी एक एडजेक्टिव है। यस सर। एडजेक्टिव का टाइम से क्या लेना है भाई? वो सुंदर लड़की तो ब्यूटीफुल गर्ल, पास्ट में अलग, प्रेजेंट में ब्यूटीफुल नहीं तो कुछ और बोलना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? ये कहाँ गया ये साधु बाबा? रवि, कैमरा पे आओ साधु बाबा। भोला बाबा, हर हर भोले, बम बम भोले। कॉमन सेंस देखिए कि हमें डरावनी फिल्में पता है बोलनी है, डरावनी फिल्में, और उसको हम टाइम और टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? अगर खूबसूरत लड़की का इंग्लिश ब्यूटीफुल गर्ल होता है, कोई भी टेंस में बोलेंगे ब्यूटीफुल गर्ल ही रहेगा ना। भोला बाबा सोचते हैं कि फ्राइटनिंग फिल्म होगी प्रेजेंट में और फ्राइटन फिल्म डरावनी फिल्म। भोला बाबा से। यप, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये कोई बात, मतलब कुछ बोलने की बात है। मैंने कहा ना, कोई तो ग्राउंड हो, कोई तो लॉजिक हो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो मन है बोल दिए। हैंडसम बॉय, पास्ट में हैंडसम बॉय, प्रेजेंट में कुछ और, राइट? क्या बात है?
कुछ तो बोल लो। अच्छा, अब वापस आते हैं। कुछ बोलो रवि, इतना बढ़िया से जो सत्य वचन दिए थे उस पे कुछ तो थीसिस दो, कैसे सोचा था। पास्ट में फ्राइटेंड फिल्म, प्रेजेंट में फ्राइटनिंग फिल्म है ना भाई। एक खूबसूरत चेहरा, ब्यूटीफुल फेस, पास्ट में कुछ और, प्रेजेंट में कुछ और। कोई लेना देना होता है नाउन और एडजेक्टिव का, टाइम और टेंस से कोई लेना देना होता है? A beautiful girl is, a beautiful girl was, a beautiful girl will be, right? उसका कोई लेना देना। लेकिन ये बात अभी तक इतने लंबे समय में हमारे भोला बाबा को नहीं समझ में आई। बढ़िया बात। अब वापस आते आप लोगों की तरफ। बोरिंग फिल्म सुना था कि बोर्ड फिल्म सुना था? Boring movie. Boring film. Because I am bored. Film was boring. I am bored. है ना? Yes. इंसान के इमोशंस होते हैं ईडी से, और बाकी जो चीजें वैसी कर दें आपको वो होती हैं आईएनजी। I यहाँ फ्राइटेंड होगा। फिर वैसे ही जब कंक्लूजन पे जंप मार रहे हैं। दो में से एक को बोलना है, दो में से एक ही होगा, लेकिन हम लॉजिक करें कि हम कंक्लूजन दें। क्योंकि होगा क्या, आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर किया। मैंने जब चेहरा बनाया तो अपने आंसर बदल लिया। कोई प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है? कोई भी यहाँ पे प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप सही हो जाएगा। डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर तो आई एंजॉयड। हाँ, छोड़ दीजिए इंजॉयड को। इंजॉयड को गोली मारिए। सिर्फ यहां पर ये देखिए कि क्या है नाश रिश्ता एक्साइटेड और एक्साइटिंग में, टायर्ड और टायरिंग में, अनॉयड और अनोइंग में क्या है रिश्ता, वरीड और वरिंग में क्या है रिश्ता, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड में, इंटरेस्टिंग बोरिंग और बोर्ड में क्या है रिश्ता। और इसके बाद अगर ये सिर्फ देख के भी हमारा दिमाग नहीं खुल रहा है, मैं क्या बोलूं आपको, किसी को भी मैं क्या बोलूं? क्योंकि मुझे मुझे जरूरत नहीं पड़ी इससे ज्यादा बताने की कभी ना, कि भाई अगर लेसन बोरिंग है तो स्टूडेंट्स बोर्ड है। अब क्या होता है, बोरिंग लेसन की वजह से स्टूडेंट्स बोर्ड हो जाते हैं, राइट? अगर मूवी क्या होगी, बोर्ड होगी कि बोरिंग होगी? boring. Boring. बोरिंग। Boring. और जो ऑडियंस हो गए वो बोरिंग मूवी देख के कैसा बोर्ड हो फील? जाएंगे। Bored. और ये इतना करने के बाद अब मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत है? अब मुझे बताइए फिल्म क्या होगी, फ्राइटनिंग या फ्राइटेंड? Frightening movie. Frightened. फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मूवी। Frightening movie. फ्राइटनिंग मूवीज। क्वेश्चन क्या होता है, कंफ्यूजिंग की कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज। Question. कंफ्यूजिंग। सो आई एम कंफ्यूज। Question confusing. I am confused. हम लोगों ने हाउ मच टाइम डिड स्पेंड ऑन दिस टॉपिक? कितना समय बिताया था हम लोगों ने? पूरा एक क्लास या डेढ़ दो क्लास बिताया होगा हम लोगों ने। और आज आप हमें Yes. फ्राइटन फिल्म फ्राइटन फिल्म फ्राइटन फिल्म चिपका रहे हैं सबके साथ। और जाहिर सी बात है, अगर मैं रिएक्शन दूंगा तो आप थोड़ी देर में फ्राइटनिंग बोलने लगोगे, लेकिन प्रोसेस तो नहीं सोच रहे ना कि हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। अरे दो में से एक सही है तो एक गलत हुआ तो दूसरा सही हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। लॉजिक करना है, कैसे डिसाइड होगा अगली बार। एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस कि एम्बैरेस्ड एक्सपीरियंस? Embarrassing. Embarrassed. एम्बैरेस्ड। फिर वही पहुंच, कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा, कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा। एक्चुअली कुछ चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, इसलिए परेशान है लोग। चलाने की कोशिश भी तो करे, पूछे कि क्या चलाना चाहिए, अगर नहीं समझ आए तो पूछे कैसे डिसाइड कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ चीजों में क्षमता होती है कि वो आपको अफेक्ट कर सके। एक बोरिंग फिल्म में क्षमता है कि वो आपको बोर्ड फील करा सके। एक एक कॉज है, दूसरा रिजल्ट है। एक कॉज है, दूसरा रिजल्ट है। आप मुझे बताओ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये कॉज है कि रिजल्ट है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कॉज है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूज्ड। Confused. स्टूडेंट्स
अगर द टीचर आस्क्ड ए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो रिजल्ट क्या होगा? Students were confused. The Students are confused. students will feel confused. स्टूडेंट्स विल फील कंफ्यूज्ड, ये होगा रिजल्ट। तो आप मुझे हर जगह एक बार गलत एक बार सही करके बताएंगे, या आइडिया लेंगे कि दो बातें होंगी। आदमी कैसा फील किया रिजल्ट के तौर पे, वो ईडी। आदमी अनॉयड फील किया, यानी कि कुछ उसके साथ क्या हुआ था, कैसा हुआ था, कुछ अनोइंग हुआ था। कुछ अनोइंग हुआ तो वो कैसा फील किया? Annoyed. Annoyed. तो जब ये कनेक्शन हम पढ़ाए इतना गहरे जा करके, तो आप लोग कैसे इस चीज को आज भी उलट पुलट कर रहे हैं? मैंने पूछा एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि एम्बैरेस सिचुएशन, आप कह रहे एम्बैरेस सिचुएशन। अरे सिचुएशन एम्बैरेसिंग होगी तब ना आदमी फील करेगा Yes, एम्बैरेस। embarrassed. Yes, sir. Embarrassing situation. इसमें क्या ही अलग है? बोरिंग फिल्म आपको बोर्ड कर सकती है, तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपको Embarrass कर सकती embarrass है। करा सकती है। एक इंसल्टिंग क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप कैसा फील करोगे? Insulted. तो ये तोते की तरह आप आराम से जवाब देते, फिर आपसे जब सिचुएशन में जाते तो आप लोग ईडी लगाते हो। थोड़ी देर पहले आपने एम्बैरेस सिचुएशन कह दिया। एम्बैरेस सिचुएशन करने वाला जब होगा तो उसमें क्या होगा? आईएनजी कि ईडी? करने वाला, अनॉय करने वाला। अब बोलो इसका इंग्लिश क्या करेंगे? अनॉय करने वाला, ING. Annoying. बोर Annoying. करने वाला, बोर करने वाला, Boring. एम्बैरेस करने वाला, Embarrassing. डराने वाला, What coming in, sir? डराने वाला, Frightening. फ्राइटनिंग। When you got it wrong, निशात, twice. तुम भी गलत हो गई। I didn't expect that, क्योंकि पॉइंट है भाई, तरफ करने वाला है, पे हुआ कुछ एक चीज होगी जो करेगी, कुछ फील कराएगी, that करोगे। yes sir, that time I think जैसे film is boring, I am bored, but I am not saying I am confused. अब मुझे ये बताओ कि जो खेल होगा वो टायरिंग होगा कि टायर्ड होगा? गेम जो होगा वो टायरिंग होगा कि टायर्ड होगा? Tiring. Tiring. Tiring होगा। Tiring. टायर्ड कौन होगा? टायर्ड कौन होगा? Tired Players. पर्सन जो खेलेगा जो खेलेगा। वो टायर्ड होगा। ठीक है, आई बात समझ में? पीछे की चीजों को रिवीजन करा करिए, आप लोग की गलती एक ही है, चीजों को लाइटली लेना। अगर यहाँ मौका नहीं मिलता सुनने का तो आप तो कंफ्यूजन में ही रह जाते। दिस इज यूनिट 7 and we studied it in unit 6, ing and ed adjectives. Page number 52. Everybody revise your lesson today. This is very very disappointing. अच्छा मुझे बताइए, रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग होता है कि डिसअपॉइंटेड? Disappointing. Disappointed. डिसअपॉइंटेड Disappointed. Disappointing होता है तब अगला इंसान disappointed होता है। Disappointed होगा। करने वाला ये रिजल्ट कैसा होगा? डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटेड। Disappointed. Disappointed. डिसअपॉइंटिंग I am disappointed. Result is disappointing. करोगे आप लोग या ऐसे ही जवाब देते रहोगे? कुछ होगा, कुछ जो सीखा है उसको अप्लाई करोगे? क्या सीखा आप लोगों ने? बोरिंग फिल्म से चलोगे आगे, वहीं से समझ में आ जाएगा सारा। रिजल्ट को कौन से एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करोगे? डिसअपॉइंटिंग कि डिसअपॉइंटेड? Disappointed. रिजल्ट को ऐसे, हाँ रिजल्ट को ऐसे disappointed. क्यों रेनू, क्यों डिसअपॉइंटेड कैसे होगा रिजल्ट? रिजल्ट है बस cause disappointing होगा। Result is हाँ disappointing. cause is disappointing Students होगा are disappointed. और रिजल्ट disappointed होगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा मैं फिर से पूछ लेता हूँ।
आप लोग मुझे सोच के जवाब देना। इस साल लड़कों का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था, इस साल लड़कों का रिजल्ट डिसअपॉइंटेड था। डिसअपॉइंटिंग था। डिसअपॉइंटिंग था। और लड़कों के पेरेंट्स कैसा फील किए उस रिजल्ट के लिए? Disappointed. 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 Students' parents are disappointed. Cause. परफॉर्मेंस अमेजिंग होगा कि अमेज्ड होगा? Amazing. Amazing. Amazing, amazing. अमेज्ड कौन होगा? Performers are amazing. Performers are amazed. परफॉर्मेंस नहीं, जो देखने वाले वो अमेज्ड होंगे। कॉमन सेंस लगाओ। Viewers Viewer or audience. विराट कोहली एक डिसअपॉइंटिंग शॉट खेल के आउट हुआ कि डिसअपॉइंटेड शॉट खेल के आउट हुआ? Disappointing. Disappointing shot करके out हुआ। disappointing shot. सोचना है या ऐसे ही बोलना है? सोच के बोल रहा है। सोचिए पहले। डिसअपॉइंटिंग होगा तब वो उसके बाद डिसअपॉइंटेड। Disappointing. विराट कोहली होगा disappointed. Disappointed. और जितने लोग कोहली के साथ हैं, कोहली के चाहने वाले हैं, खुद कोहली कैसा फील करेगा उस शॉट को खेल के? डिसअपॉइंटेड। वो लोग भी disappointed होगा। Disappointing. शॉट कैसा कहलाएगा? Disappointing. Shot. Disappointing shot. जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, उस प्रॉब्लम को कौन से एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करना पसंद करोगे? जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ रहा है, लोग माथा पेची कर रहे हैं बैठ के, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे, उसको कौन से एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करोगे? उस प्रॉब्लम को कैसा प्रॉब्लम करोगे? Confusing. So your voice is not clear. Difficulty. Difficult. No. अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, आदमी उसमें बहुत दिमाग लगा रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, उस प्रॉब्लम को कैसे, कौन से एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करोगे? Difficult. एक प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, बहुत लोग दिमाग लगा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे उस बात को, दिमाग घूम रहा है उनका, उस प्रॉब्लम को कौन से एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करोगे? Disappointing problem. कोई और एडजेक्टिव सोचो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा उनका, सॉल्व करने वाले लोगों का। उस प्रॉब्लम को कैसे डिस्क्राइब करोगे? इट वॉज ए डॉट 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 प्रॉब्लम। कंफ्यूजिंग किसको कहते हैं? कंफ्यूजिंग किसको कहते हैं? जब दिमाग काम नहीं करता है। अब लगातार मैं बोल रहा हूँ Confused. कि दिमाग नहीं काम कर रहा, उनका सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा उनको, बोल रहा हूँ मैं। Yeah. फिर क्या वजह है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं स्ट्राइक कर रहा? क्या वजह है? Because we are confused. दैट्स राइट। थोड़ा आप लोग को रियलाइज हो रहा है कि आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजों में आप उलझ रहे हैं जहां उलझने की कोई जरूरत नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये बहुत कंफ्यूजिंग आइडिया है, ईडी एडजेक्टिव और आईएनजी एडजेक्टिव? अगर आप हमेशा से बोलते रहे हैं इंटरेस्टिंग मूवी, बोरिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी, बोरिंग मूवी, और इंटरेस्टेड पीपल, बोर्ड पीपल, अगर आप हमेशा से बोलते हैं, क्या ये दो एग्जाम्पल्स काफ़ी नहीं है? कल भी मैंने हाईलाइट कर रहा था कि कैसे आप लोग पैटर्न नहीं पकड़ पाते हो, हाईलाइट किया था मैंने ये बात। यस नो क्वेश्चन। और अनीश, इतना सब करने के बाद तुमने नो वाले में नो ही इज लिखा है, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है। क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा दोस्तों? क्या आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करेंगे, गौर करने की क्षमता पे थोड़ा बढ़ाएंगे? क्या सीख रहे हैं? क्या आपको घूंट पिलाया जाए
कान में डाल दिया जाए याद करने के लिए, आप बस याद कर ले, ऐसा चाहते हैं आप, या सोचने समझने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं आप अपने अंदर? ये चॉइस आपका है। आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एज अ टीचर बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट। मुझे इसकी आदत नहीं है, मैंने ऐसे नहीं देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए। किस चीज़ में? बोरिंग और बोर्ड एक बार जो समझ में आ जाए इंसान के, समझ जाते हैं कि बोरिंग फिल्म ने ही तो बोर्ड किया है, वो समझ जाते बस इतने से। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया। एक इंसल्टिंग व्यवहार जो होता है, इंसल्टिंग व्यवहार जो होता है किसी का, वो सामने वाले को इंसल्टेड फील कराता है। ये कनेक्शन बनाने में इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग ऑफर होता है तो सामने वाला इंटरेस्टेड होता है, एक्साइटेड होता है। हाँ या ना? ये हिंदी में समझ में आ रहा है ये सब कनेक्शन, कि आईएनजी वाला कॉज करता है और ईडी वाला फील करता है रिजल्ट। अगर मूवी बोरिंग है तभी ऑडियंस बोर्ड होती है, बोर्ड, ईडी। अगर काम बहुत टायरिंग है तो काम करने वाला टायर्ड फील करेगा। डायरेक्ट कनेक्शन दिखता है आईएनजी और ईडी एडजेक्टिव में। तो किसी जगह पे भी ये कंफ्यूजन कैसे आ सकता है? क्या अब तक हम एहसास नहीं किए कि ईडी एडजेक्टिव्स कोई कैसा फील किया ये बताता है, और उसको फील कराने वाली चीजें आईएनजी एडजेक्टिव से बताती है। एक बच्चे का बिहेवियर अनोइंग होता है और उस बच्चे की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से लोग जो होते हैं वो कैसा फील करते हैं। Annoyed. तो ये कनेक्शन कितना मुश्किल है दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना इसका। हर जगह यही कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आज तक इंडियन स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते नहीं देखा इस पे, आज तक नहीं देखा। आज आज पहली बार देखा है इतना स्ट्रगल इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे हो। मैंने फॉरेनर्स को देखा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आईएनजी और ईडी में, उनके लैंग्वेज की वजह से होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना क्लियर कट है कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते वो भी बोलते बोरिंग फिल्म, और वहां से दिमाग कैसे काम नहीं कर रहा। आपकी अनोइंग हैबिट से दूसरे कैसा फील करते हैं? जल्दी जवाब दीजिए। Annoyed. 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 और थोड़ा अपने आप पे काम करिए दोस्तों, क्योंकि सीखना आप ही को है। और आप अगर इतनी छोटी छोटी आइडियाज में से उलझ जाएंगे तो बड़े आइडियाज कैसे समझेंगे? क्या उलझना बनता था? सवाल यह है, क्या ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें गलतियां होनी चाहिए थी फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद? एक बार जब यूनिट 6 में आप लोगों ने ये पढ़ लिया था, उसके बाद इस चीज़ में आपको कंफ्यूज्ड होना चाहिए था दोबारा से? क्या मुझे आज फिर से ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होनी चाहिए थी? क्या आपके मुंह से फ्राइटेंड फिल्म्स निकलना चाहिए था? आई एम आस्किंग यू। आप अपने आप से पूछिए, सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, क्या ये होना चाहिए था? ऐसी चीज़ है ये जो कंफ्यूज कर दे किसी को? अगर हाँ तो बोलो कि सर मुझे तो लगता है कि ये कंफ्यूज कर सकता है। अगर नहीं तो फिर पूछो अपने आप से कि फिर क्यों कंफ्यूज हुए तुम? दैट वॉज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग टू से द लीस्ट। एंड रवि, वेयर आर यू? पास्ट टेंस में फ्राइटेंड और प्रेजेंट टेंस में फ्राइटनिंग। तुम एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर, एडजेक्टिव बोल रहे हो, तुम्हें एहसास तक नहीं हो रहा? व्हाट आर यू डूइंग? डरावनी फिल्म बोलना है तुम्हें, तो डरावनी एक एडजेक्टिव है, तुम्हें एहसास नहीं होता इस बात का? एहसास नहीं होता? You guys should definitely, ask yourself some hard questions. इसका इंजॉय से कोई लेना देना नहीं है। जो इंजॉय से कनेक्ट कर रहे हो आप लोग, आईएनजी आईएनजी,
इंजॉय के बाद आईएनजी लगाना होता है बताने के लिए किस चीज को आप पसंद करते हो। आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो आप बोलोगे एंजॉय वॉचिंग टीवी। आपको इंग्लिश सीखना मजेदार लगता है, आप बोलोगे आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। जो काम में आपको मजा आता है वो काम में बताओगे आईएनजी लगा करके। यहाँ कोई काम में मजा आता है एंजॉय फ्राइटनिंग फिल्म्स? कि आपको फिल्में देखने मजा आता है, आई एंजॉय फ्राइटनिंग फिल्म्स, आई एंजॉय क्रिकेट? ये कैसा जवाब था कि इंजॉय के बाद आईएनजी आता है इसलिए ये आईएनजी लगा होगा यहाँ पे? कैसे सोचा ऐसा आपने? कोई तो लॉजिक हो जहां आपका दिमाग कहे कि हाँ मैं समझ रहा हूं कोई भी चीज। इंजॉय के बाद आईएनजी आता है किस लिए, क्यों, क्या बताने के लिए? कि वो काम जो है जो आईएनजी से बताया जाएगा वो काम आपको पसंद है। जैसे मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है दौड़ने में। दौड़ना एक वर्ब है रन, लेकिन आई एंजॉय रन नहीं बोलेंगे, आई एंजॉय रनिंग बोलेंगे। इसका फ्राइटनिंग फिल्म से क्या कनेक्शन हो सकता है इस बात का? अगर कोई कहता है एंजॉय फ्राइटनिंग फिल्म्स तो बेसिकली वो क्या बता रहा है, उसको क्या पसंद है? फिल्म पसंद है या फ्राइटनिंग पसंद है? फिल्म पसंद है। किस तरह की फिल्म पसंद है? फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग। एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। ये एडजेक्टिव है। किस तरह की फिल्म? फ्राइटनिंग फिल्म, डराने वाली फिल्म है। इस सेंटेंस की हिंदी करिए, यू आर फ्राइटनिंग मी, यू आर फ्राइटनिंग मी। हिंदी करिए इसकी। तुम मुझे डरा रहे हो। ये फ्राइटनिंग एडजेक्टिव है, यस और नो? यह या यू आर फ्राइटनिंग मी, मुझे डरा रहे हो। ये फ्राइटनिंग एडजेक्टिव है, हाँ या ना? प्रोसेस करो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है हड़बड़ा करके। प्रोसेस करो, एडजेक्टिव क्या होता है पूछो अपने आप से। एक एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो बताता है नाउन के बारे में कुछ। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां से चलो, जंप मत करो। अगर दिमाग बड़े छलांग लगाने में गिर जाते हो तो छोटे छोटे कदम लो। अब बताओ फ्राइटनिंग एडजेक्टिव है, हाँ या नहीं? यू आर फ्राइटनिंग मी। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है सर। कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये? बी वर्ग को आर मी बी वर्ग यू आर है ना। फ्राइटनिंग मी। मी को सर मुझे को। मेरे रिएक्शन के हिसाब से मत बात करना, हाँ या ना, ठीक है? अपने अंदर झांको, मेरे मेरे चेहरे को देख के मत डिसाइड करो। आर बी वर्ग है। अब सोचो, यू आर फ्राइटनिंग मी, इस सेंटेंस में फ्राइटनिंग एडजेक्टिव है या नहीं, डिसाइड करो प्रोसेस करके। जंप मत करना हाँ या ना पे। जानो एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे यूज होता है। अगर वो फिट होता है उस जगह पे बोलो हाँ, अगर वो उस तरह से नहीं फिट होता तो बोलो नहीं। यहाँ तो वर्ब है सर। बी वर्ब है, आर एडजेक्टिव है, ये एड वर्ब होगा। यू आर फ्राइटनिंग मी का हिंदी क्या हुआ? तुम मुझे डरा रहे हो। अब बोलो, तुम मुझे मार रहे हो। यू आर बीटिंग। ये बोलो, adverb होगा, क्रिया विशेषण। यू आर बीटिंग में। अब यू बोलो, आर तुम बीटिंग, मुझे सिखा रहे हो, तुम मुझे सिखा रहे हो। यू आर You लर्निंग are मी, learning me. वर्ब टीचिंग मी, यू आर टीचिंग। टीचिंग मी, टीचिंग मी। यू आर टीचिंग मी। टीचिंग। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। नहीं सर वर्ब। नहीं सर, एडवर्ब है। नहीं सर वर्ब है। वर्ब सर। फाइटिंग पे। फाइटिंग कैसे फाइटिंग?
ई वर्ब है। फ्राइटन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं जिसमें कोई एक्शन अभी हो रहा है। यू आर टीचिंग मी, आप पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस चीज के बारे में होता है? टेंस किस चीज के बारे में होता है? वर्ब के बारे में। तो लिखा, म्यूट योरसेल्फ। एक एक वर्ब ले लीजिए, टीच। अब 3 सेंटेंस सुनिए। आई टीच यू, प्रेजेंट सिंपल। आई और यू वैसा ही रहेगा। आई टॉट यू, पास्ट सिंपल। आई एम टीचिंग तो यू। आराम से आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान से सुनना है, गौर से समझना है। टेंस मतलब होता है वर्ब का फॉर्म चेंज होना, उसके हिसाब से मीनिंग बदलती है। आई टीच यू की हिंदी होती है मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई टॉट यू मतलब मैंने आपको पढ़ाया था या मैं आपको पढ़ाता था, पास्ट टेंस। तो टॉट खाली बदला टीच का वर्ब। बाकी आई और यू तो जस के तस है ना। यानी टेंस क्या होता है? वर्ब की कहानी है, वर्ब को चेंज कैसे कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बोलना है मुझे, तो आई और यू जस के तस रहेंगे और बीच में एम टीचिंग हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू। और इसको कोई एडवर्ब बोल रहा है, कोई एडजेक्टिव बोल रहा है, क्या कर रहे हो? क्या है ये? आई एम टीचिंग वर्ब वर्ब है। जो टेंस के हिसाब से बदला, आई एम टीचिंग यू। तो आई एम, यू आर फ्राइटनिंग मी, ये फ्राइटनिंग एडजेक्टिव था? नो हाँ, लेकिन अभी तो वर्ब हो गया। यू आर फ्राइटनिंग मी में फ्राइटनिंग क्या है? वर्ब है वर्ब वर्ब है। कौन सा फॉर्म? वर्ब का चौथा फॉर्म। क्यों आया है? क्यों आया है? क्योंकि कोई काम अभी हो रहा है। और इसकी हिंदी क्या होगी? तुम मुझे डरा रहे हो। करा रहे हो तुम मुझे। डरा रहे हो अभी। अब हिंदी चेंज करता हूं मैं, तुम मुझे डराते हो। इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? डराते हो। यू फ्राइट तुम मुझे डराते हो। Fright, fright me. फ्राइटेंड में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? V1. फर्स्ट रीजन यू फ्राइटन मी, फ्राइटन वर्ब का V1 है, फ्राइटन V1 है, फ्राइटन। फ्राइटन मतलब डराना। फ्राइटन उसी में आईएनजी लगाते हैं तो V4 बनता है, फ्राइटनिंग। FRIGHTEN, फ्राइटन। फ्राइटन मीन्स डराना। मेरे पापा मुझे डराते हैं। माय फादर माय फ्राइटेंड। फादर फ्राइटन माय मी फादर फ्राइटेंड में पास्ट टेंस मैंने कहा डराते हैं। फ्राइटन मी, फ्राइटन FRIGHTEN। मेरे पापा मुझे डराते हैं। माय फादर फ्राइटेंड मी। माय फादर फ्राइटेंड में फ्राइट मी माय फादर फ्राइट मी मेरे पापा हंसते हैं। माय फादर माय फादर लव My father loves. माय फादर लव मेरे पापा हंसते हैं। My father laughs. माय फादर laughs। तो लाफ्स लाफ्स बार बार बोल रहे हैं, लेकिन फ्राइटन में एस लगाने की जरूरत नहीं समझाएंगे आपको मैं से किसी को। फ्राइटन मतलब क्या है? वो सिर्फ लाफ में एस लगाना है कि किसी भी वर्ब में एस लगाना है जब प्रेजेंट सिंपल होगा तो? तो क्या कर रहे हैं आप? सब लोग लाफ्स लाफ्स कर रहे हैं, लेकिन फ्राइटन में तो एस किसी ने नहीं लगाया। मैं तो सुन रहा था, किसी ने तो नहीं लगाने की जहमत उठाई। माई फादर फ्राइटन्स मी नहीं बोलेंगे, फ्राइटन मी बोल रहे हैं सारे के सारे। तो आपका टेंस लाफ तक ही रहता है क्या? आपका रूल लाफ तक ही अप्लाई होता है, बाकी वर्ब में अप्लाई नहीं करना? यही है आपके ऑब्जर्व करने की क्षमता की लिमिटेशन। बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग तोते की तरह सीखते हो। लाफ्स में तो याद आ जाता है एस, फ्राइटन में नहीं आता याद आपको कि वर्ब में एस लगाना होता है जब ही शीट होता है तो प्रेजेंट में। मुझे मेरे पिताजी मुझे डराते हैं, मैं अपने पिता से डरता हूं। माई फादर फ्राइटन्स मी। अब मैं आपको वापस लेके चलो यूनिट 1 2 में, वहां पढ़ाता हूं फिर से। हाउ अबाउट दैट? सही रहेगा?
माई फादर फ्राइटन मी। Frightens me. क्यों छूट गया था एस पता है? क्योंकि आप लोग कभी किसी चीज के पैटर्न पे गौर नहीं करते कि जब सब्जेक्ट, मैंने कहा मेरे पिता मुझे फ्राइटन करते हैं, डराते हैं, मैंने क्यों कहा था मेरे पिता के? देखता हूं आपके दिमाग में ही शीट के लिए वो एस वाली बात है कि नहीं, जगह बनी है कि नहीं? नहीं बनी है, नहीं बनी है, किसी के दिमाग में नहीं बनी है। बस वो लाफ्स, गोज, ईट्स यहां तक रहेगा, लेकिन जैसे एक नया वर्ब आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा आइडिया आपके दिमाग से, क्योंकि लाफ्स, गोज, ईट्स करते करते आप बड़े हुए हैं, वहां तक रहता है आपके दिमाग में। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। कर रहे You हैं। are confusing Are me. You are confusing me. confusing me. सारे लोग बोलिएगा। You are confused me. You are confusing me. अपूर्वा कैसे confusing सुना? बोलो अपूर्वा। अपूर्वा क्या हुआ? अपूर्वा बोलो। You are confused me. हिंदी कर बोलो। बोलो। कर रहे You हैं। are confusing me. अपूर्वा हिंदी बोलो। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। Sorry sir, you are confusing me. यही कहूं मैं तुम लोगों को, पैटर्न गौर करना ही नहीं है कुछ में भी, जो मनाए बोलना है। अब बोलो तुम मुझे कंफ्यूज करते हो। You You confuse me. confuse. You confuse me. Confuse me. Confuse me. You Confuse me. confuse me. Are confused. You You confuse. confuse You me. confuse me. करते हो, तुम मुझे कंफ्यूज करते हो। You are confused me. You confuse You me. confuse me. You confuse me. वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? V1. 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 निशात, Yes, sir. तुम मुझे कंफ्यूज करते हो। You are confuses me. तुम मुझे प्यार करते हो। You are loves me. तुम मुझे प्यार करते हो। You 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 loves me. तुम मुझे प्यार करते कहकर शाह तुम मुझे प्यार करते हो। हो। You love me. कहकर शाह तुम मुझे प्यार करते हो। इंग्लिश जल्दी बोलो। You loves me. एस क्यों लगाया? You love me. एस के लगाने की वजह बताओ, प्रोसेस। एस क्यों लगाया? निशात, Yes, sir. तुम मुझे प्यार करते हो। You loves me. लव्स में एस क्यों लगा रहे हो? तुम मुझे सॉरी सर, you love me. सॉरी क्यों बोल रहे हो? V1. मैंने रीजन पूछा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कंक्लूजन से मतलब नहीं है, गलत रिजल्ट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस क्या है, कैसे सोचते हो? आयशा, तुम मुझे प्यार करते हो। You love me. एस क्यों नहीं लगाया तुमने? क्या ये सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए मुंह पे सब लोगों के? Yes. Yes. You loves me. You love me. You love You me. love me. आई You और love यू के साथ You ऐसे love नहीं me. लगता। एस You loves किसके साथ me. लगता है?
ही He, शी she, के it, साथ none. ही बस ही शी इट के साथ लगता है। यहाँ तो मैं कह रहा तुम तो क्यों लग रहा है एस, क्यों लगा रहे लोग एस, मुझे नहीं पता। एस तो सिर्फ ही शी इट के साथ लगता है। ही गोस, शी गोस, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट आई और वर्क्स। यू के साथ एस नहीं लगता। ये बोलने की जरूरत ही क्या है? वर्ब अगर में अगर हम एक चीज याद रखें कि सिर्फ ही शीट में एस लगता है, तो क्या काफी नहीं है ये कि किस में नहीं लगता है बोलने की जरूरत बची? अगर मैं कहूँ इस संयोगिता मैम मैरिड हैं, तो बाकी सब नहीं मैरिड है, क्लियर नहीं हो जाता? क्या याद करने की जरूरत है? निशात मैरिड नहीं है, रेनू मैरिड नहीं है, ऐसा याद करने की जरूरत है क्या अलग से? अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि संयुक्ता मैम मैरिड है सिर्फ, तो सिर्फ ही शीट के साथ एस लगता है वर्ब में। ये सुनने के बाद क्या ये बात की याद करने की जरूरत है किसके साथ नहीं लगता? दोस्तों जवाब दीजिएगा, क्या इस बात की जरूरत रह जाती है कि किसके साथ नहीं लगता, ये याद रखने की? No. किसके साथ लगाना है? He, she, it. He, ही शेड के साथ। सर कंफ्यूज कर देते हैं हम लोग को। Sir confuses us. Used us. सर क्यों कंफ्यूजेस रवि चेहरा दिखाओ पूरा यार, कहाँ चेहरा छुपाए हो यार? सर सामने आओ कंफ्यूजेज कैमरे पे यार, एंगल सही करो यार कैमरे का। सर कंफ्यूजेस अस। जवाब दो, तुमसे भी सवाल पूछा जा रहा है रवि, चुप मत बैठे रहो इनएक्टिव होकर के। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, गलतियां करो, 50 बार करो, 51वां बार सही हो जाएगा ना ठीक करके। सर हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। Sir Sir confuses confuses us. us. सर Confuses कंफ्यूज us. Sir हैं confuses us. आर और us। सर कंफ्यूज कर देने वाला सवाल पूछते हैं। आर कंफ्यूजिंग सर आस्क कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सर सर आस्क सर आस्क कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आस्क कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। Asks confusing. क्वेश्चन बोलना है कि क्वेश्चंस बोलना है? दो ऑप्शन होता है, क्वेश्चन और क्वेश्चंस। क्या बोलना है? क्वेश्चन Questions. Questions. कुछ क्वेश्चन पूछो अपने आप से, हर जगह पे सवाल करो। जो जो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा और क्यों। क्वेश्चन और क्वेश्चंस दो वर्ड्स होते हैं ना, क्वेश्चन का दो Yeah. फॉर्म है ना, क्वेश्चन क्वेश्चंस। यहाँ कौन सा फॉर्म चाहिए हमें? क्वेश्चंस Questions. बोला था, क्वेश्चंस बोला था आप लोगों ने। क्यों? दिमाग में क्षमता नहीं है ये कैलकुलेशन करने की कि हाँ क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन चाहिए? क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं तो इसलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन बोलेंगे। तो फिर वो 15 मिनट के लिए वीडियो क्यों देखा था आप लोगों ने 3:30 वाला? क्यों कहा था मैंने वो 15 मिनट के लिए देख लेना? सर कंफ्यूज करने वाला सवाल पूछते हैं, सर आस्क्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। हम लोग ना कंफ्यूज जाते हैं सर जब पूछते हैं तो। We are confused. वी आर When कंफ्यूज sir when sir asked us. asks us confusing question, You got when sir get asks confused sir। confusing question, सर we confused. confusing When questions। sir asked confusing When sir questions, then we are ask confused. when sir asks confusing questions, we get confused। When sir asks confusing questions, we get confused। confused. जितना भी लिखा हुआ है ग्रुप में, रवि है और लोगों ने जो लिखा है, क्या प्रैक्टिस कहते हैं इसको? प्रैक्टिस में दिमाग चलता है, दिमाग चलता है ना दोस्तों। आप लोगों ने कुछ लिखा है, वेयर वॉज द फर्स्ट छठ पूजा स्टार्ट? देखिए नहीं चला दिमाग, नहीं चला, नहीं सीख पाए।
रवि, क्वेश्चन नंबर, अपना सेंटेंस नंबर 12 देखो। लीफ इज ग्रोन, और नंबर 1 देखो, वॉज और स्टार्ट। कनेक्शन बनाओ, बना सकते हो तो। मैंने 2 तरह के सेंटेंसेस बताए, कल जो सेंटेंस पढ़ाया उसमें था एक कि आपके डूअर नहीं है। मैंने कहा किडनैपर्स पकड़े गए, पकड़ने वाला डूअर होगा, उसकी बात नहीं करी। अगर कहता तो कहता पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ लिया, डूअर की तरफ से। तो जो हम लोग सेंटेंसेस पढ़े हैं, डिड, डू, डजंट, ये डूअर की तरफ से करते हैं। जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, द पुलिस अरेस्टेड द किडनैपर्स। माई फादर गेव मी अ बाइक, माई टीचर टॉट मी द स्ट्रक्चर। तो डूअर है जो वर्ब के पहले है, उसने काम किया या करता है प्रेजेंट सिंपल में। माई टीचर स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। तो स्पीक्स, कौन स्पीक का काम करता है? माई टीचर। कनेक्शन यही है दोनों के बीच, माई टीचर स्पीक्स। लेकिन कल का सेंटेंस एक ऐसा था जिसमें डूअर नहीं था। ये चीज हुआ, ये चीज किया गया। हम लोगों ने ये सेंटेंसेस पढ़े। कुर्सियां तोड़ी गईं, कुर्सियां तोड़ी गईं। Chairs are broken. पास्ट टेंस में मैंने बोला है, तोड़ी गईं, तोड़ी जाती हैं नहीं कहा मैंने। Chair was broken. अच्छा कोई नहीं, प्रैक्टिस से ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। वॉज नहीं, वर चाहिए यहाँ पे। Yes, were with. Chair. लड़कियों को मारा गया। कौन मारा? Got हमने नहीं कहा, No. मैंने कहा रावण मारा गया, आखिर में रावण मारा गया, कल याद है कराया था। The girls was beaten. Were beaten. मुझे रीजन दिया जाए कि मैं क्यों ना स्ट्रिक्ट हो करके कुछ डिसीजंस लूं। मैं किधर first देख रहा हूँ प्रैक्टिस? कल मैंने इतनी मेहनत करी करी थी ये चीज समझाने में। रेनू, आपके सेंटेंसेस किधर हैं जो मैंने प्रैक्टिस कराया, जो सिखाया उसका? मैं क्यों ना कुछ हार्ड डिसीजंस लूं आप लोग के खिलाफ? संयोगिता मैम, Yes, sir. आयशा, उज़मा, मौनी, सारे लोग, सना, आतिफ, गणपत। Sorry, sir. My exam going on. That is, I can't do it. माई एग्जाम इज गोइंग ऑन। इसको खा गए आप? Okay. खाइए मत कोई वर्ड्स, आराम से बोलिए, रुक के बोलिए। Yes. आप लोग अभी भी एहसास नहीं कर पा रहे कि आप लोग कितने छोटी छोटी चीज़ों पे क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि आपके सीखने के नज़रिए अलग हैं। अभी भी आप एडजस्ट नहीं कर पाए हैं मेरे सीखने के नज़रिए से। जो बात समझ में आए उसको एक लाइन लिख के बताया जाता है कि ये बात मैंने सीखा, समझा, कंफर्म करा जाता है। और आपको 15 लाइन नहीं लिखना है, आपको समझना है पहले, समझने के बाद 1-2 लाइन भी लिखेंगे। समझने के बाद बात समझिएगा। अगर आप अभी भी वर्ब एडजेक्टिव ये नहीं समझ पा रहे हैं, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद, आप सबको पता है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम कहते हैं माई फादर इज फ्राइटनिंग मी, यू आर फ्राइटनिंग मी, आप इस फ्राइटनिंग को एडजेक्टिव बोलते हो, तो मैं आपको बस यही कह सकता हूं कि आपको बहुत दूर जाना है। आप बहुत कमजोर हैं इंग्लिश में, समझ के मामले में। आप बहुत कुछ याद करे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एडजेक्टिव बोल देते हैं तो आपको एडजेक्टिव की फील नहीं है। सुनते सुनते याद हो गया है कि लवली एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव, स्मॉल एडजेक्टिव है, याद हो गया है। आप महसूस नहीं करते एडजेक्टिव का काम क्या है। अगर आप महसूस कर पाएंगे तो यू आर स्माइलिंग को आप स्माइलिंग को थोड़ी एडजेक्टिव बोलेंगे जब आप जानते हैं इसका हिंदी है तुम मुस्कुरा रहे हो, Deliver. तुम एक काम कर रहे हो,
यू आर verb, स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, तुम एक काम करो, किधर है एडजेक्टिव? का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग इंग्लिश को फील जरा नहीं कर पा रहे, सिर्फ याद कर रहे। बताइए, मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग जाता हूं आपसे जो मुझे कहीं तो कॉन्फिडेंस मिल जाए कि नहीं यहाँ ठीक है, वहां भी गड्ढा। मैंने पूछ दिया, यू आर फ्राइटनिंग मी, क्या ये फ्राइटनिंग एडजेक्टिव है? सब हाँ 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 करने लग गए थे। you are loving me, verb, और आपने हिंदी पहले मुझे बता दिया कि तुम मुझे डरा रहे हो, उसके बाद भी तुमने कहा कि ये फ्राइटनिंग एडजेक्टिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उस सेंटेंस की हिंदी करने के बाद तुमने उसको एडजेक्टिव बोला। सर sometime I get confused. इसमें क्या है सर ये confused? एडजेक्टिव है और क्या है? ईडी एडजेक्टिव है। आई गेट हैप्पी, आई गेट एंग्री। आई गेट एंग्री बोला आपने कभी? ही गेट्स एंग्री, आसान सेंटेंस है। बताइए एंग्री क्या है? Adjective. तो गेट हमेशा एडजेक्टिव के पहले यूज होता है बताने के लिए कि बदलाव हुआ। मैं खाने के घंटे अंदर फिर से भूख लगने लग जाती है, आई गेट हंग्री विद इन एन आवर ऑफ माई मील। आई गेट हंग्री इन द मॉर्निंग, आई डोंट गेट हंग्री इन द मॉर्निंग। गेट हंग्री, गेट एंग्री, गेट टायर्ड सुना है? आई गेट टायर्ड वेरी इजिली। तो क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन जीरो है। आप लोग ये सारे सेंटेंसेस बोलते हो, बोलो आई गेट टायर्ड बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सोचेगा कौन उसके बारे में? हिंदी के अलावा सोचना शुरू करोगे, हिंदी से इंग्लिश समझ में आ जाएगी। वो गेट टायर्ड कैसे बना? क्योंकि गेट के बाद एडजेक्टिव्स आ सकता है और उसका मतलब होता है वो स्थिति में आ जाना। जैसे आई गेट टायर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 2 minutes ऑफ रनिंग। आई रन ओनली फॉर 2 minutes एंड आई गेट टायर्ड, मतलब मैं थक जाता हूं। हिंदी में मैं थक जाता हूं, इंग्लिश में है आई गेट टायर्ड। गेट वर्ब है, टायर्ड एडजेक्टिव है। I get tired means I become tired. I get tired means I become tired, Become tired. और आप कहते हैं कि कैसे समझ नहीं पा रहे आप? आई गेट कंफ्यूज में आप नहीं समझ पा रहे कि कंफ्यूज एडजेक्टिव है, ईडी एडजेक्टिव है। कौन सा टेंस है ये? आई गेट कंफ्यूज टेंस बताइए। Present simple sir. प्रेजेंट सिंपल। आई गेट टायर्ड सब्जेक्ट प्लस V1 है, आई गेट टायर्ड। ऑब्जर्वेशन करिए, हल्के हल्के हवा में उड़ रहे हैं बिना गौर किए हुए चीजों को। अब मुझे बताइए, मेरी मेरी बहन कंफ्यूज हो जाती है, कैसे बोलेंगे? My My sister sister gets confused. confused. My sister Confused. gets Confused. confused. Gets confused. मैं आपको वापस यूनिट 2-3 पढ़ा रहा हूं, गौर करोगे तो। ये गेट के बाद एस लगाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको फिर से। Gets confused. Gets confused. माई सिस्टर गेट्स कंफ्यूज्ड इजिली। ये इजिली एडवर्ब है। माई सिस्टर गेट्स कंफ्यूज्ड इजिली। Easily. आपको पता है एलवाई एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होता है। पहले पहले रेगुलर एडवर्ब सीखिए, आसानी से कंफ्यूज जाती है। माई सिस्टर गेट्स कंफ्यूज्ड इजिली। मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं। I get tired I easily, get tired easily. Easily. Tired. क्विकली, Easily. Quickly. Quickly, easily. सून। Easily. I get I tired get tired very soon. Very early. सॉरी मोनी। Very early. अर्ली मतलब थोड़ा अलग होता है मामला। जैसे कोई टाइम होगा ना उसके पहले, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यहाँ अर्ली अच्छा नहीं होगा बोलना, वो कोई बात नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। जहां पर आपकी गलती नहीं है मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो फीलिंग के साथ आएगा मोनी। मैं कभी नहीं आपको डांट सकता, पता है। आई डोंट लूज माई टेम्पर विद माई स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल काम है इंग्लिश सीखना। लेकिन जहां कॉमन सेंस की बात आती है और वो अप्लाई नहीं करे कोई, तो मैं उसको झेल नहीं पाता। मेरी प्रॉब्लम है दोस्तों। मैं
सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे होती है कॉमन सेंस जिनके पास नहीं होता, उनसे हैंडल करना, उनको हैंडल नहीं कर पाता मैं। आप इंग्लिश में, जैसे यहाँ पर मोनी ने कहा अर्ली, लिख सकते, बोल सकते हैं क्या? आपने मुझे जरा देखा रिएक्शन देते हुए? मैंने कहा नहीं मोनी, वो अलग वर्ड है, क्योंकि मैं समझता हूँ वो अर्ली क्यों बोल रहे हैं, वो फीलिंग की बात है। जब आपकी फीलिंग बेहतर हो जाएगी इंग्लिश में, तो आप वहां अर्ली बोलना बंद करेंगे। अर्ली का जो ओवरऑल आइडिया आता है ना, वो करीब रहता है, वो क्विकली वाला, समझ गए मोनी? तो आपको वो लग रहा होगा सही, लेकिन धीरे धीरे मैं समझा लूंगा आपको, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं उसके लिए। आप गलत वर्ड बोल रहे हैं, वर्ड की फीलिंग नहीं है, समझ में आता है। आप ग्रामर में कैसे उलट पलट कर रहे हो? एस छोड़ देते हो माई फादर फ्राइटन में, कैसे करते हो ऐसा? अपनी गलतियों पे ध्यान दो, कुछ करो उसके लिए, इट्स योर लाइफ, ओके? ट्रस्ट मी, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, ओके? A lot of people joined my classes, some of them never learned. So what do you think? Did it affect me? No. My job, my business? No. But yes, they couldn't learn. You have to ensure your own success. Follow my advice. What are you doing? सबसे पहले बताओ मुझे, प्रैक्टिस तुम लोगों ने क्यों नहीं किया कल जो पढ़ाया था मैंने उसका? क्या ये कल करोगे? अगर ऐसा करोगे मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, एक लाइन में, आई विल सिंपली कैंसिल द क्लास। अगर आपको जो मेहनत करके मैं आधे घंटे 40 मिनट में किसी एक आइडिया पर समय बिताऊं और आपको सिखाऊं, और उसके बाद आप 24 घंटे बाद चले आओ बिना उसकी प्रैक्टिस किए हुए, कुछ सोचे बगैर, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस किए बगैर, आपको लगता है मैं उसको लाइटली लेने वाला हूं? आपको लगता है ऐसा? आप बहुत गलत फहमी में है ना। फिर मैं अगला स्टेप कैसे लूंगा? अच्छा, जैसे सीढ़ी बना रहे हैं हम लोग, एक सीढ़ी मैंने बनाया, अगर वो सीढ़ी हट जाए तो फिर ऊपर वाली सीढ़ी कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? एक ईंट की दीवार लगाई मैंने, एक लगाया, आप उसको हटा दे, फिर ऊपर कैसे लगाऊंगा मैं? पहले वो पक्का अपनी जगह पे रहेगा, फिर ही अगला जाएगा ना। आप ये नहीं समझ पा रहे? आपको लग रहा है ये कोई कोर्स है, खत्म हो जाना है? अरे स्किल डेवलप करने का काम कर रहे हो आप। लेजी पीपल, केयरलेस पीपल, डोंट, फिर से बताता हूं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ओवर डू एनीथिंग। बस जो समझाया है उसको रिवाइज करके एक या दो लाइन वैसा समझ के, और हाँ, मेरी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं कहाँ क्यों आप लोग को मुश्किल हो रही है। आप कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, आप में से ज्यादातर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उसी का नतीजा हुआ कि आपने एस छोड़ा, उसका नतीजा हुआ कि आपने ही माई फादर इज फ्राइटनिंग मी, मैं फ्राइटनिंग को यू आर फ्राइटनिंग मी, मैं फ्राइटनिंग को आपने एडजेक्टिव बोला। गौर करिएगा कैसे कैसी फंडामेंटल एरर्स किए हैं आप। इसी का नतीजा है कि आप लोग फ्राइटेंड मूवी बोले जा रहे थे, फ्राइटेंड फिल्म बोले जा रहे थे। तो ये सब फंडामेंटल एरर्स आपके समझ में, कोई शॉर्टकट नहीं है आपके लिए। कोई कितना भी कुछ अच्छी बातें बोल दे आपको अच्छा फील कराने के लिए, रियलिटी की ये सब डिसीजन आप लोगों ने लिए ना। आज आपने फ्राइटन फिल्म, फ्राइटन फिल्म, फ्राइटन फिल्म बोला ना 5 बार, ठीक है? आप कंफ्यूज्ड हुए ना कि फ्राइटनिंग फिल्म होना चाहिए कि फ्राइटन फिल्म होना चाहिए, जबकि आपको पता है बोरिंग फिल्म होता है, क्योंकि आप बोरिंग और फ्राइटनिंग में कोई पैटर्न नहीं देख पाते हो कि दोनों में आईएनजी लग रहा है, दोनों एक जैसी चीज है। यही प्रॉब्लम है आपकी, पैटर्न नहीं देखना, हर बात को अलग सोचना, अलग। एक ये आई, इसका नाम एक्स वाई जेड है, ये आया इसका नाम एबीसी है, सबको अलग अलग याद करना। कोई किसका भाई बहन है, कोई कुछ में कनेक्शन, ये सब नहीं गौर करना, ये सब नहीं कर, सब सिर्फ अलग अलग नाम याद करना। आप हर एक सेंटेंस का अलग से हिंदी याद करते हैं, उस वर्ड की हिंदी करते हैं, बस यही करते हैं आप कनेक्शन नहीं बनाते, कुछ नहीं। अगर बनाते होते तो आपने ही इज फ्राइटनिंग मी को, फ्राइटनिंग को एडजेक्टिव बोला था। आप लोग नहीं बोलते हैं ही इज बीटिंग मी, या ही इज कुछ भी, इतना सारा इंग्लिश है, ही इज टीचिंग मी, या ही इज पनिशिंग मी। आप सब नहीं जानते ये सेंटेंस, आप सब जानते, बोलो कि नहीं जानते हो इसकी हिंदी। ही इज पनिशिंग मी, ही इज टीचिंग मी, नहीं जानते इसकी हिंदी, लेकिन आप कभी सोचते ही नहीं इस बारे में ना कि ही इज टीचिंग मी में ही सब्जेक्ट है, टीच वर्ब का इज टीचिंग फॉर्म है, ही इज टीचिंग, ये है अभी हो रहा है, वो पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप सोचोगे नहीं।
और वो मुझे पढ़ाते हैं, ही टीचेस मी। और वो कल पढ़ाए थे हमको, He taught वो me. कल हमको पढ़ाए थे। He He taught me. taught, he yesterday. taught, he Yesterday taught he me. taught me, he taught me। तो टीच का ही तो खेल हो रहा है ना ये सब। टेंस क्या है, इससे क्या पता चला? ये 3 एग्जाम्पल देके मैं क्या हिंट दे रहा हूं आपको? टेंस क्या है? टेंस सीखना मतलब क्या सीखना? वर्ब फॉर्म सीखना। Verb change. कि कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म किस तरह के फीलिंग हिंदी में देता है, ये समझ बनाना। यही है ना? क्योंकि ही और मी दोनों, जैसे ही इज टीचिंग मी, ही टीचेस मी, ही टॉट मी, तीनों के तीनों। अब एक और ले लेते हैं, ही कैन टीच मी। कैन भी पढ़ा आपने? ही कैन टीच मी, इससे भी कुछ पता चला कि उसमें इतनी क्षमता है। ही कैन टीच मी, क्षमता बताने के लिए कैन यूज करते, ही कैन टीच मी। बस इतनी सी चीजें पढ़ी हैं, उसमें इतना कंफ्यूजन। पता है क्यों? 1, you guys are not very hardworking. Point number 1. Point number 2, your observation sucks. Your observation sucks. You don't care about connecting dots. कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। कल कल एक सेकेंड, कल ही करा था ना हम लोगों ने इतना ज्यादा। इज ही हैप्पी? यस ही इज। वॉज ही हैप्पी? यस ही वॉज। डिड ही गो देर? यस ही डिड। कल ही करा था ना हम लोगों ने पैटर्न, फिर भी गड़बड़ा रहे थे। याद करो आप लोग। तो कौन से गलत फहमी में बैठे हो? अपने आप को कहां समझ रखा है तुम लोगों ने? अपनी कमजोरियों को एक्नॉलेज करो, उस पर काम करो। कि हम लोग कोई चीज को पैटर्न नहीं देखते, हम बस करते रहते हैं। सर बोल दिए, हाँ ठीक है, ही इज, ही इज, ही इज। ये नहीं सर, ही इज क्या कर रहे हैं हम, क्या हुआ इसका मतलब? सोचने की जहमत नहीं उठाते आप, जरा सा भी नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि आज क्लास ऐसे रुक जाएगा, ऐसे जगह पे आकर कहां पे? फ्राइटनिंग फिल्म्स पे रुक जाएगा। मैंने सपने में नहीं सोचा था। आई थॉट कि मैं आज वो 6 लोगों की ऑडियो प्ले करूंगा, आपको तरह तरह के सेंटेंसेस सिखाऊंगा, उन्होंने जो बोला वहां से कितनी ग्रामर हाईलाइट करूंगा। मुझे नहीं पता था आप लोग ऐसे गाड़ी को रोक दोगे फ्राइटनिंग फिल्म्स पे। 24 घंटे 48 घंटे, परसों से एक अभी तक 48 घंटे हुए, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि वो फ्राइटेंड फिल्म नहीं हो सकता? उसकी वजह है, फ्राइटेंड आदमी फील करता है। सांप देखोगे तुम कैसा फील करोगे? Frightened. 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 तुम फिल्म को फ्राइटेंड बोल रहे हो? फिल्म ही डर गया, फिल्म ही डर गया। जैसे तुम सांप को देख के कैसा फील करते हो, रिएक्शन दो चेहरे का। तो फिल्म ऐसे हो गया, फिल्म ऐसे हो गया किसकी वजह से भाई? फ्राइटेंड फिल्म। हंसी आती है, मेरा खून जला के हंसी आती है आप लोगों को। नहीं सोचा होता कि फ्राइटेंड, तो आदमी फ्राइटेंड है, ठीक है, तो फिल्में ऐसे कर सकती हैं क्या? फिल्में ऐसे करेंगी? फ्राइटेंड फिल्म बोलने से पहले ऊपर वाले ने आप पे बिजली क्यों नहीं गिरा दी? अरे ऐसा मत सोचना, मैं सीरियस नहीं बोल रहा, बिल्कुल बिल्कुल मत सोचना ऐसा, बिल्कुल। गाइस नो मी राइट, मैं कभी कभी बहुत कुछ बोल जाता हूँ उल्टा पुल्टा, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तुम ऐसा सोच रहे हो मैं सच में बिजली गिराने की बात कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है ऊपर वाला बिजली गिराता है? गलतफहमी मत रहना, ओके? अलग टॉपिक चला जाएगा, ठीक है? ऊपर वाला बिजली नहीं गिराता, बिजली किसी और वजह से गिरती है, ठीक है? बिजली गिरती है जब कोई बिजली को पैर लगा देता है ऐसे, ठीक है? या बिजली जब ज्यादा हाई हील सैंडल्स पहन के चलती है तो गिरती है बिजली, ठीक है? हाँ, ये गलतफहमी मत रहना। चलो वापस आते हैं। दोस्तों ऐसे मत करा करो यार, बहुत ज्यादा टॉर्चरस फील करते हैं आपके टीचर। इस तरह से आप ऐसी चीजों में उलझते हो जो इतना अच्छे से आप पढ़े थे, समझे थे, उसके बाद आप, ये स्किल का क्लास है, कोई कोर्स नहीं है ना कि एग्जाम होगा इसका एक दिन। पागल गलत बात करते हो आप लोग। यहाँ पर स्किल की बात है। क्या सीखा था आपने उस दिन? इतना मेहनत किया मैंने, आईएनजी ईडी एडजेक्टिव करवाया आपके साथ। और तुम्हारे साथ क्या हुआ था रवि, जो तुम फ्राइटन पास्ट टेंस और फ्राइटनिंग प्रेजेंट टेंस कर रहे थे? एकदम दिमाग बंद करके बैठे हुए थे ना। प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे हित में नहीं है, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे ऐसे सोचोगे तो, ठीक है? फिल्म को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत थी,
डरावनी फिल्में, फ्राइटनिंग फिल्म्स। पता है जिस दिन से मैंने वो पढ़ाया ना आपको, वो उस दिन से मैंने आपसे पूछा है, क्या कहते हैं कि इंसान कितने दिन वेट किया था, ठीक है, उस दिन से मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ है, आप सब लोग बड़े अलग तरीके से इंसान हो, सब लगते नॉर्मल एकदम, ठीक है, लेकिन मुझे याद है आप लोगों ने क्या क्या करा था उस दिन मेरे साथ। मैंने घर पे बात की उस बारे में, बाय द वे लेट मी टेल यू, ओके, कि मैंने अपने क्लास में ये सवाल पूछा कि इंसान कितना दिन इंतजार किया होगा तो हवाई जहाज उड़ाया। तो किसी ने 60 साल कहा, किसी ने 100 साल कहा, किसी ने कहा आजादी के पहले, किसी ने कहा मैं बता रहा हूं, मेरे लिए उस दिन से अभी तक मैं बाहर नहीं आ पाया हूं उस दिन से, यकीन मानो। और ये चीज मुझे बहुत डरा रही है कि आपके सोचने की क्षमता इतनी लिमिटेड है, आप कैसे आगे इंग्लिश में बढ़ोगे। और ये बार बार उस दिन से लगातार हो रहा है कि मैं आपको पुश करता हूं चेक करने के लिए कि आप सोच पा रहे हो। उस दिन मैंने पूछ दिया आपसे कि भाई वो इंस्क्रिप्शन छोड़ा क्यों छोड़ा, ठीक है, एक दो लोगों ने मुझे थोड़ा सही जवाब दिया, बाकी सब उस दिन भी मुझे पागल बनाए। तो आप लोग गौर करो, आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग रियलाइज करो। आपको समझना होगा, हो सकता है आपने आज तक चीजों को याद करके हैंडल कर लिया, एग्जाम वगैरह पास किया है, आप यहाँ स्किल डेवलप कर रहे हो। स्किल डेवलप करना मतलब दिमाग लगाना। अच्छा सुनो, एक वर्ड होता है इम्प्रोवाइजेशन, इसका मतलब होता है कि जो बात बताई गई है उससे कुछ अलग हो जाए तो क्या अपना दिमाग लगा के कुछ कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं उसको, ठीक है। टीचर क्लास में गए पढ़ाने के लिए, सब कुछ सही था, अचानक से बीच में ना लाइट चली गई। अब टीचर क्या करे, उसका सारा पीपीटी कंप्यूटर सब बंद हो गया दोस्तों। अब टीचर क्या करे, तो या तो क्लास कैंसिल कर दे या तो इम्प्रोवाइज करे, क्योंकि ये सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होके नहीं आया। तो लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। तुम लोग इस बात को नहीं समझते, रटा हुआ विद्या को रिपीट करना इज नॉट कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज इज अबाउट मेकिंग कैलकुलेशंस इन द प्रेजेंट मोमेंट। वहां पे कुछ ऐसा डिसीजन लेना जो इन्फॉर्म्ड लगे, जो लॉजिकल लगे। तो आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह की गलतियां कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज मैं ओवरलुक कर दूं अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे पता है करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन कल मैंने इतना बताया, क्या आप वन बाय वन मुझे अपना रियल रीजन दे सकते हो बिना कोई एक्सक्यूज दिए हुए कि आपके सेंटेंसेस ग्रुप में क्यों नहीं है? सर हमने प्रैक्टिस किया सर। आई वॉज सो एंग्री आई कुडंट से एनीथिंग वाला 4 5 8 सेंटेंस लिखा है। और आई हमें लाइक 8 की चाउमीन, क्यों आई रियली जरूरत है? डू। अगर हम वो समझ गए तो हमें 8 की क्यों जरूरत है, मैं ये पूछता हूं कुछ क्लास वाला कुछ अपना बनाया। फिर से। अगर हम अच्छा। समझ गए तो 8 की क्यों जरूरत है? 2 काफी क्यों नहीं अगर हम सो समझ गए? हैप्पी, आई फेल्ट लाइक बात समझते क्राइंग। हैं मैं दो क्या चार कहना चाह रहा हूं? अगर हम समझ गए हैं तो हम 2 भी तो लिख के बता ही सकते हैं कि हम समझ गए ना। 8 क्यों? फिर दूसरे चीज पे हम क्यों नहीं फोकस करें? क्योंकि एक ही चीज पढ़ाई थी क्या मैंने कल? 2 चीज का प्रैक्टिस किया और ऑडियो फाइल लिखे बस। और ये क्वेश्चन आंसर जैसे आप बताए कल थे ना, क्लास में कितनी बातें स्टैंड। बताई मैंने आपको? मैं फिर से बोल रहा हूं, कल कितनी सुबह से बात। लगे हुए थे आज हम। आप पूरा समय दी हैं आज? हाँ, बस। ऑडियो फाइल सुने थोड़ा थोड़ा सिस्टम, आप करके यकीन फिर मानिए आपके लिखे। बोलते के साथ लेकिन अब नहीं मेरा हो मन पा रहा है खुश सर, हो। अब तो हमको भी डर नहीं, लगने excuse me, लगा मैम, है। अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आपसे सुनते के साथ मैं निश्चिंत हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका ओवरकम यही रास्ता है। आपने कहा ना आप लगे हुए हैं सुबह से, आई ट्रस्ट यू फुली, आई ट्रस्ट यू फुली। मैं आपसे अब एक सवाल नहीं पूछूंगा, पता है, क्योंकि मैं यही चाहता हूं आपके रास्ते मुश्किल है, आप इस बात को एहसास करें और उसके बाद अपना बेस्ट दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, बाकी लोग मुझे बताएं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, क्या अपना जेन्युइन रीजन दे सकते हैं जो आपके दिमाग में चला है वही, कुछ और नहीं, सच। एक्सक्यूज मुझे सुनना नहीं किसी का, मुझे सच बता सकते हो कोई कि मैंने इस वजह से प्रैक्टिस नहीं किया? Sir, I missed 2 3 classes, so I watched previous recording and then I listened audio file. So I wrote
only audio script, sir. ऑडियो स्क्रिप्ट लिखने का कोई फायदा नहीं इस क्लास में। आप लोग ऑडियो स्क्रिप्ट ना लिखें, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू गाइज डोंट ऑब्जर्व एनीथिंग। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। डोंट राइट द ऑडियो स्क्रिप्ट। मैं भेज दूंगा ऑडियो स्क्रिप्ट ग्रुप में, ओके? बट प्लीज स्पेंड योर टाइम मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। क्या हो रहा है, जो पढ़ाया वो, अपना नया ऑब्जर्वेशन मत करना। जो पढ़ाया वो चीज दिख रहा है कि नहीं, जो मैंने पढ़ाया वो हो रहा है कि नहीं। टाइम लगता है दोस्तों। आप मेरी जगह पे आकर देखना कितना मुश्किल होता है। मेरा पेट में गोल गोल हो रहा है, पता है आपको? मैं इमोशनल इंसान हूँ, मेरे काम के लिए मैं इमोशनल हूँ, और मैं इसको चैलेंज के तौर पे लेता हूँ ना, कि सिखाना है लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है? चेंज करना पड़ता है बहुत सारा चीज। तो मेरे पेट में भी गोल गोल हो रहा है क्योंकि मैं बहुत प्रेशर फील, ओके? आप लोग के लिए ऐसे ही हो सकता है, मे बी आप लोग सीरियस हो सकता है आपकी जरूरत नहीं हो, ठीक है? बट आई एम समबडी हु हैज ऑलवेज ब्रॉट रिजल्ट्स। मैं रिजल्ट्स लाता हूँ ना लड़कों के लिए, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कैसे होगा। आप लोग लापरवाही कर दिए, कल का क्लास रिवीजन नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए, क्यों? और अगर आप ऐसे करोगे तो एक समय आएगा जब मुझे स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मैं चाहता नहीं हूं। आई वॉन्ट टू कोऑपरेट विद यू एंड आई वॉन्ट योर कोऑपरेशन, but eventually I'll have to show you that you guys are being careless, na, by being strict with you. Okay, stop it. Just stop it. Change. And Sayogita, just want Yes, sir. to say one thing. अगर आप समय दे रही हैं मैम, ठीक है, तो यस सर, आज लिखे भी क्वेश्चन, जैसे आप कल बता रहे थे ना, व्हाट इज फ्रैंक फेवरेट फिल्म, तो उस हाँ, तरह से सबका 5-6 का बहुत मैंने सही लिखा, होता है मैम। आप अगर सुना, समय दे पढ़ा। रही हैं तो आपकी सारी गलतियां मेरे सिर माथे पे। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट क्या ही कर सकता है अपने तरफ से? बेस्ट क्या कर सकता है? समय दे सकता है ना दोस्तों, ठीक है? आप वो दे रहे हो ना, फिर मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा। चाहे जितना समय लगना है लगेगा, आई एम गोइंग टू बी विद यू। बट मुझे प्रॉब्लम आती है केयरलेस लोगों से, और कुछ नहीं, ठीक है? केयरलेस नहीं होना है आपको किसी को भी, ओके गाइस? यू कांट अफोर्ड टू बी केयरलेस, दैट्स ऑल। रिमेंबर दैट। आई लव फ्राइटनिंग फिल्म्स। मुझे कैसी फिल्में पसंद है? आई लव फ्राइटनिंग I love frightening. Frightening films. Also, I loved the Jaws music. Also, I love the Jaws music. One more thing also means one more thing. I love the Jaws music. Also, I love the Jaws music. Da-da, da-da. I feel frightened hearing it now. I feel frightened hearing it even now. I feel frightened. I feel Frightening. frightened hearing it even now. Hearing it now. Yeah, I feel frightened hearing it now. आप even भी डाल सकते हैं, hearing it even now. आप even चाहे तो डाल सकते हैं, अभी भी सुनता हूं तो डर जाता हूं, राइट? I feel frightened hearing it even now. अब ये सेंटेंस गौर से समझिएगा, महसूस करिए कनेक्शन दोस्तों। आपको कनेक्शन समझना है। आई फील फ्राइटेंड इजी है। आई फील फ्राइटेंड, मुझे डर लग जाता है। आई फील फ्राइटेंड हियरिंग इट इवन नाउ। अभी भी सुनते हैं तो, बचपन में सुने डर लगा, समझ में आता है, अभी भी लग जाता है। सरप्राइजिंग है ना? इसलिए आई फील फ्राइटेंड हियरिंग इट इवन नाउ। अगर एक सिमिलर सेंटेंस बोले तो उस सर को देख के डर लगता था, अभी भी उनको देखते हैं तो डर जाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं ना? सिमिलर है ना? सिमिलर है ना? तो सिमिलर पहले समझ तो आए कि सिमिलर क्या है। बस समझ में, जब हिंदी सिमिलर समझ में आ जाएगा, इंग्लिश भी सिमिलर समझ में आएगा। चलो दोस्तों, कर लो इंग्लिश। I feel frightened. चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लो, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी जाता है, ऐसे थोड़ी बीच से शुरू करते हैं। बोलो, XYZ सर वॉज वेरी फ्राइटनिंग। So we XYZ feel sir was frightened. very frightening. So फ्राइटनिंग we, फ्राइटनिंग टीचर्स होते हैं ना क्लास स्कूल में, कोई कोई yes स्केरी sir. टीचर्स। स्केरी बोलते हैं, अनदर वर्ड फॉर फ्राइटनिंग इज स्केरी। So SCARY, ओके, स्केरी। सो XYZ scary. सर वॉज वेरी स्केरी। XYZ sir was very scary. या बाय बाय काशिफ। आज भी उनको देखते हैं तो डर जाते हैं। आई फील I I feel feel frightened. Frightened. I feel frightened. frightened. फ्राइटेंड। Scaring. Scared when we Scaring. I feel scaring. Frightened. feel Hearing it. scared No. when Scared. we see. Saying it now, even no, sir.
स्केयरिंग सर, जब देखेंगे तब स्कैर्ड फील मैंने होगा वो तो। डरना, स्कैर्ड। मैं हेयर कैसे यूज करेंगे? अरे भाई पिछला स्केयरिंग सेंटेंस में क्या हेयर था? कैसे डाल देंगे हम? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पिछला सेंटेंस क्या था? आई फील फ्राइटेंड हियरिंग इट हाँ। इवन नाउ। आपने लिखा हुआ सेंटेंस हियरिंग इट इवन नाउ, यहाँ पर कौन सा वर्ड हट रहा है पहले ये बताओ। स्केरी, फ्राइटेंड से हियरिंग की हटा जगह के क्या स्केयर। बोलेंगे? आई फील इस आई स्केयर्ड। फील स्केयर्ड। स्केयर। स्कैर्ड। अब स्केयर्ड तो तब जब देख के होंगे सर। अरे भाई फील स्केर्ड फील फ्राइटेंड तक तो हो गए। हियरिंग, हियर सुन करके स्केर्ड होता है वो म्यूजिक को। हम टीचर्स को सुन के कि देख के डरने की बात कर रहे देख हैं। कर सर, तो देख फिर कर। हटा देंगे ना, हियरिंग हटा देंगे ना, और क्या देख कर। लगा देंगे वहां पे? सींग। सींग। आप सरप्राइज क्यों होती हैं रेनू? सरप्राइज टोन में क्यों बोलती हैं? ये मुझे ये समझ नहीं आता। ये नॉर्मल टोन में क्यों नहीं बोलती कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ये क्यों नहीं? सीइंग, सीइंग, सरप्राइज, यही होगा क्या? ऐसा क्यों करती हैं आप? इससे लगता है कि आप पैटर्न नहीं गौर करी। अरे पैटर्न गौर करो ना, जैसे उसको सुन के लगता है, आपको देख के लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आई फील फ्राइटन। I feel आगे frightened. बोलो। सीइंग, Frightened. I feel Seeing. seeing it even I feel now. frightened seeing. सीइंग के Seeing बाद him, का असली खेल है। seeing him, seeing him, हाँ अब आई seeing सही him. जगह Seeing. पे, सीइंग हिम। ओके, Seeing even सीइंग now. हिम। और आई नाउ की जगह फील टुडे बोलना ज्यादा अच्छा होगा कि नाउ बोलना अच्छा होगा? जरा जरा सोच के बताओ। Today. टुडे टुडे मतलब आज, आज का Today. दिन, की अभी भी मतलब क्या? क्या टुडे अभी मतलब भी, Now. प्रेजेंट? अभी भी, अभी नाउ हाँ भी। भी हो Now. एग्जैक्टली। ठीक है। आई वॉज वेरी आई स्केर्ड ऑफ हिम इन माई चाइल्डहुड। आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हिम इन माई चाइल्डहुड। हम उनसे बहुत चाइल्ड डरते थे। आप उन आज भी डर जाते हैं उनको देख के। आई फील स्केर्ड सीइंग हिम इवन टुडे, है ना? Feel scared seeing him आई even होप यू today. अंडरस्टैंड। तो बस एक लाइन करना है आपको, बहुत ज्यादा 15 लाइन 10 लाइन नहीं करना है। समझ बनानी है कि उसका कनेक्शन क्या हुआ। हाँ जैसे आज भी देख के डर जाते। ओके, आई फील फ्राइटेंड हियरिंग इट नाउ। I'm not sure who starred in the film. I'm not sure who starred in the film. I'm not sure who starred in the film. बोलो। आई एम नॉट श्योर हु स्टार्ड इन द फिल्म, Sure, इन who दिस फिल्म। starred in the film? अच्छा मैं फिर बता रहा हूं, मैं अब जहां से सिखा रहा हूं यहां से हिंदी का रोल कम है। जो पढ़ाया है मैंने अब तक वही एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग यूनिट 7 में है, तो मैं यूनिट 1 2 3 4 5 वाली बातें बोलूंगा कि मैंने ये बताया है। आपको रिकॉल करना होगा कि हाँ आपने बताया है। बात समझ में आई? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, हिंदी नहीं। आई एम नॉट श्योर हु स्टार्ड इन द फिल्म। हु के बाद कौन सा वर्ड बोलते हैं? बोल के दिखाओ। स्टार्ड। हु के बाद कोई वर्ड बोल के दिखाओ। हु स्टार्ड इन द फिल्म? हु हु लव्ड यू। who loved you? Okay, Who who loved you? starred in the film? Who worked in the film? Start की जगह Who बोलो word, worked who worked in the film, right? वर्क इन द फिल्म। I'm not sure who starred in the film. हमको पक्का पक्का नहीं पता फिल्म में कौन था। I'm not sure who starred in the film. Okay, अब मैंने जब हिंदी करी तो वर्ड से नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि मैं इमोशन मैच करा रहा हूं। अब बाकी वर्ड्स तुम्हें इंग्लिश के अरेंजमेंट देखने होंगे। I'm not sure समझ में आता है? I'm not sure में श्योर का पार्ट ऑफ द स्पीच बताओ दोस्तों। किसका? श्योर का? I'm not sure. It's an adjective. I'm not sure. It's an अगर adjective, आपको sir. इतना टाइम लग रहा है दोस्तों तो आप बहुत एडजेक्टिव सर। मुसीबत में हो, बहुत मुसीबत हो। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट हैप्पी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। Adjective. आई Adjective. एम नॉट श्योर, एडजेक्टिव, आई एम नॉट यस। हैप्पी। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स ऐसे ही यूज होते हैं। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट पॉपुलर, आई एम नॉट श्योर, सारे एडजेक्टिव्स हैं। वो आई को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मीनिंग कुछ भी हो, सारे एडजेक्टिव्स और आई को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट श्योर। समझ में आई बात? ये सारे वर्ड्स आई को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाँ कि ना? अब ये यही है इंग्लिश सीखना आपके लिए। अगर आपका दिमाग इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर पाता है, गुड। नहीं तो जितने देर से करे लेकिन करना ही पड़ेगा। इंग्लिश सीखना है तो हिंदी नहीं करनी है। आई एम नॉट श्योर का हम श्योर नहीं है, सब हिंदी में बोलते हैं हम श्योर नहीं है। इंग्लिश सीखना है तो ये सोचना था आई एम नॉट श्योर, अपने तरफ से सोचना था कि श्योर एक एडजेक्टिव है, हाँ या ना?
सोचना Yes, चाहिए sir. था आपको, हम्म सोचना चाहिए था। जो वर्ड्स हम्म आ रहे हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए ना। आई एम नॉट श्योर। और श्योर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ किसको श्योर ने डिस्क्राइब किया? I. आई को। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट श्योर। आप लोगों ने आज पूरा क्लास फ्राइटनिंग और फ्राइटन के चक्कर में खराब करा है, याद रखिए, ठीक है? जो कि लोग यूनिट 6 में क्लियर कर चुके थे। बता दीजिए कि आपको ये आइडिया नहीं क्लियर हुआ था कि आईएनजी कहाँ लगाते हैं और ईडी कहाँ लगाते हैं। इसलिए अपने पुराने लेसन्स पे समय नहीं दीजिए। सर, मेन चीज है नया वर्ड को हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, जैसे फ्राइटिंग नया वर्ड था, इसमें नहीं था। एकदम वही बात। सटीक बात बोल दी संयुक्ता मैम, सटीक बात कि आपको कॉन्सेप्ट इंटरेस्टेड पता है पढ़े, लेकिन वो बोरिंग नया पढ़े, वर्ड पे अप्लाई नहीं कर पाते हो आप। एक्सपेक्टेड नहीं ठीक है? पढ़े, अनॉयड पढ़े। सारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो सारे वर्ड्स पे अप्लाई होता है, आप नए वर्ड पे अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए एस छूटा था। यस सर, माय नया फादर, सेंटेंस नया वर्ड पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है? जो भी आप जानते हैं वो सारे वर्ड्स पे अप्लाई करना है दोस्तों। ओके, चलिए, कीप योर स्पिरिट्स हाई, अपने स्पिरिट्स हाई रखिए। अब कीप योर स्पिरिट्स हाई मतलब अपना क्या बनाए रखिएगा? जज्बा बनाए रखिएगा, अपना हार नहीं मानना, नेगेटिव फील नहीं करना। कोई भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे चीजों में स्टूडेंट्स का एनर्जी और कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है क्रिटिसिज्म के बाद। ये नॉर्मल है, ठीक है? उसको रोकना है कि नहीं, ये नहीं होने देना है हमें। हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम क्यों नहीं सीखेंगे, ये वाला एटीट्यूड। ओके, लगातार मेहनत करते जाइए। जहां पर क्रिटिसिज्म देना वो दूंगा मैं, बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे ही ख्याल रखना इस बात का कि आपका स्पिरिट डिप ना कर जाए। स्पिरिट मतलब होता है जोश। ओके, कीप योर स्पिरिट्स हाई, कीप योर स्पिरिट्स हाई। अभी मैंने जोश बोल तो दिया है, लेकिन स्पिरिट मतलब जोश याद करोगे अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे समझ में आने लगे स्पिरिट क्या होता है। ओके, तो keep your spirits high means feel confident that you are going to do it. Keep working, and I will see you guys tomorrow. Okay? Bye. Bye bye, everybody. Take care. Bye, sir. Bye bye. Yes, Bye sir. bye. Bye bye.